मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। Many great saints have walked the sacred land of Bharat throughout millennia. But there have been few who became true legends. One of those greatest enlightened souls was Acharya Shankar. Shining like a star with the light of knowledge and wisdom, he dispelled the darkness that enveloped the skies of Bharat during those times. Acharya Shankar extracted the essence of Veda and Upanishads and propounded them for all humanity in the form of Advaita Vedanta, the idea of oneness of all manifested forms. कोई मुझसे पूछे कि भगवान शंकराचार्य का योगदान क्या है, तो मैं कहना चाहूंगा उन्होंने पथ का प्रदर्शन किया कि सप्तपुरियां, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, जो मठामनाएं व्यवस्थाएं, और उन्हीं के कारण कदाचित ये कुंभ के मेले और नाना प्रकार की व्यवस्थाएं अथवा भारतीय जनमानस में जितने व्रत, नियम, उपवास हैं, इन सबको पुनरुज्जीवन जिसने दिया है वो भगवान शंकराचार्य हैं। सबिन्दु सिन्धु सुस्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं द्विषत्सु पापजातजात कारिवारि संयुतं कृतान्तदूतकालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। A sacred place in Madhya Pradesh holds a special connection with the life of Shankar, the land where Bhagwan Shiv manifests as Omkareshwar. At the age of 8, Shankar left Kaladi and undertook an arduous journey of 1100 miles in search of his Guru. It was in Omkareshwar where he met his Guru, Guru Govind Bhagwat Pad. It is in these divine dwellings that Shankar was transformed into Shankaracharya, a cosmic beacon for humanity. ओंकारेश्वर ऐसे ही उन्होंने पूरी भारतीय संस्कृति, संस्कार, भारतीय विचार, उसके प्रकाशन के लिए एक यात्रा की, शंकर दिग्विजय यात्रा। वो कश्मीर गए, वो केदारनाथ में गए, कन्याकुमारी पहुंचे। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भारत की एकता, अखंडता के लिए जैसे मानो उनका प्रादुर्भाव हुआ। Omkareshwar, in this sense, is the Guru Bhumi of Bharat, cradled in its heartland, nurtured by the divine waters of Manarmada. In February 2017, the government of Madhya Pradesh proposed the vision of Ekatma Dham amidst the presence of thousands of spiritual luminaries. A towering 108 feet tall statue of Acharya Shankar, the statue of oneness, would be consecrated on Mandhata Hill. Along with an aesthetically designed modern museum named Advait Lok, aimed to guide humanity through the life and teachings of Acharya Shankar. In addition, a grand Acharya Shankar International Institute of Advait Vedanta would be constructed to promote academic exploration of the various knowledge traditions initiated by Acharya Shankar. But giving a tangible form to the vision of Ekatma Dham posed several challenges. India's finest scholars, artists, engineers, architects, and experts were assembled as a special team to execute this monumental project.
बेशक हम इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग और लार्जेस्ट बिल्डिंग और G20 की वेन्यूज़ की मास्टर प्लानिंग करी है, लेकिन एकात्म धाम का प्रोजेक्ट अगर मैं देखूं, मुझे लगता है वो बहुत ही स्पेशल है। जिस तरीके का आर्किटेक्चर यहाँ सोचा जा रहा है, इसमें हमने नगर शैली और द्राविडियन आर्किटेक्चर को इनकॉर्पोरेट किया है। हम बेशक एक आधुनिक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेंगे, लेकिन उसकी लुक, फील और उसमें जो बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे वो सब ऐसे हों जो रिफ्लेक्ट कर सकें कि हमारा आर्ट एंड कल्चर कैसा रहा है। एक तरीके से एकात्म वो भी हो रहे हैं। And we worked with different experts, we organized several workshops and we did multiple simulation to get the structure and stability that we desired. बहुत डिफिकल्ट है कि आध्यात्म के विषय को भौतिक फॉर्म में दिखाना। हमें उन सामान्य रुचि और बुद्धि रखने वाले जनमानस तक पहुंचना है। विजडम जो होता है ना, जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स होती हैं, ये दिल से जाती हैं, दिल के थ्रू जाती हैं, ये इंटेलेक्चुअली नहीं जाती। तो हमारा डिज़ाइन ऐसा हम बना रहे हैं कि इसको लोग इमोशनली देखें। जो हम बना रहे हैं ऐसा कहीं और है नहीं, हमने भी नहीं देखा, इसके लिए हम मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग आर्ट जो हिंदुस्तान का आर्ट है उससे म्यूजियम बन रहा है। सिनेमा में हम सेट शूट करते हैं, हम सेट को आगे ले आए, ऑडियंस के आसपास ले आए, ऑडियंस को सेट के अंदर ले गए, उसमें हमने घर बनाया, घर के अंदर हमने प्रोजेक्शन की, तो आपको लगेगा जैसे आप उस टाइम में चले गए। In December 2017, the journey of oneness was flagged off across Madhya Pradesh as Ekatm Yatra, commencing simultaneously from Omkareshwar, Ujjain, Pachmatha and Amarkantak. The journey would collect metal for the Statue of Oneness from all 23,000 Gram Panchayats and districts of the state, and finally culminate in Omkareshwar. A yatra from Kaladi to Kedarnath was also organized as part of this journey of oneness. विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशंकर देशिक मे शरणम्। अपने अपने आचार्य होने पर भी तो सभी संप्रदाय निष्ठा से इसमें जुड़ने के लिए तैयार है। सच में वही भगवत्पाद शंकराचार्य जी का प्रागट्य। करुणा वरुणालय पालय मां भवसागर दुःख विदूनरिदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशंकर देशिक मे शरणम्। सुहिता भविता निज बोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेक विदं भवशंकर देशिक मे शरणम्। 8 साल की उम्र में वो कालड़ी से निकले और नर्मदा तीर पे ओमकारेश्वर में आए और 11 साल की उम्र में वो दिग्विजय को निकले। तो वहाँ जो मूर्ति बनेगी वो इतने साल के अंदर की होनी चाहिए। अभी तक इस आयु की कोई मूर्ति कहीं बनी नहीं है, वो पहली बार यहाँ लग रही है। सुकृते धिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शन लालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशंकर देशिक मे शरणम्। कोई भी स्ट्रक्चर दो तरीके से होता है, आइदर आपको विंड गवर्न करता है, नहीं तो अर्थक्वेक गवर्न करता है। ये स्टडी हमने किया, देन विंड का जो इफेक्ट ब्रोंज का ऊपर पड़ता है उसके लिए डिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। सो इट वाज ए वेरी वेरी क्रिटिकल डिजाइन। विचरन्ति महामह सश्चलतः अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भवशंकर देशिक मे शरणम्। करीब 6-6 फीट के पार्ट कास्टिंग किए और वहाँ असेंबल किए। सबसे पहले पैर यहाँ पे मुझे दिखाया गया
और मैं खुशी महसूस कर रहा था कि मेरा एक सपना साकार हो रहा है। पुंगव पुंगव केतनते समतामयतां नहि कोऽपि सुधीः शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे भवशङ्कर देशिक मे शरणम्। ये एक प्रोजेक्ट जो है करीब 500 साल या उससे अधिक भी रहेगा। यहाँ पे जो काम करने के लिए आया है, जो भी हमारा इंजीनियर लोग हैं, वो लोग काम करता है एज अ टीम संकट। विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो धृतमेव विधेहि कृपां सहजां भवशङ्कर देशिक मे शरणम्। भवशङ्कर देशिक मे भारत आज है क्योंकि आचार्य शंकर थे। तो आज के समय भी भारत की जो दृष्टि है, उस दृष्टि के मूल में क्या है? जो मूल में है, ये आचार्य शंकर की यात्रा का परिणाम है। जैसे विभूति में कहते हैं, अर्जुन पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मुनि में मैं व्यास हूँ, नदियों में गंगा जी हूँ। तो शायद आज कृष्ण भगवान होते तो कहते कि आचार्यों में मैं शंकर हूँ, धर्म की स्थापना के लिए ही मैं आया। आदि शंकराचार्य किसी एक जाति के नहीं, मत के नहीं। उन्होंने कहा जाति नीति कुल गोत्र दूरकम। अद्वैत ज्ञान का सिद्धांत यही है, हम सब एक हैं। इस तथ्य को जानकर आप लोगों ने इतना भव्य काम किया है। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे काम आप करते रहें। Whatever problem we want to resolve in today's world, we will be much better off if we are guided by the idea of oneness. And I congratulate everyone with this great achievement. May the Vedic vision of universal unity, as taught by Adi Shankara, lead us to peace, prosperity, self-realization and enlightenment for all. आने वाली शताब्दियाँ अब भारत की हैं और वो वेदांत की शताब्दी होगी, वो ज्ञान की शताब्दी होगी। उसका तीर्थ बनेगा ओंकारेश्वर धाम। It's fantastic that Madhya Pradesh as a state is reviving the spirit, being in the heart of India. As the heart beats, I am sure the spirit of Adi Shankara will spread across the nation. The promise made by the government of Madhya Pradesh in 2017 has now been fulfilled. The newly consecrated Statue of Oneness adorns Mandhata Hill as the crowning jewel of the divine Tirth of Omkareshwar. The pilgrims of Omkareshwar now feel divinely blessed in the presence and grace of Acharya Shankar. Ekatma Dham has reawakened the dormant Vedantic consciousness of Bharat. A new era has indeed arrived, the golden era of Advait Vedant, the era of global oneness, the era of Acharya Shankar. चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम्